चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आखिर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों किया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी को जिताना चाहती है? वहीं उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। शुक्रवार दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। कोरोना को देखते हुए सभी राज्यों में मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव की घोषणा उन्होंने की है। आपको एक बार फिर बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आखिर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों किया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी को जिताना चाहती है? वहीं उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। शुक्रवार दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। कोरोना को देखते हुए सभी राज्यों में मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव की घोषणा उन्होंने की है। Last time it was 7. No, that was, I have the data with me because I have to meet such intelligent people. That was split into 6A and 6B. It was ineffectively 7. It was split into 6A and 6B. You can take the statement from me after this. West Bengal first phase. This will be 30 ACs. 30 ACs. Issue of notification 2nd March. Last date of nominations 9th March. Scrutiny of nomination 10th March. Withdrawal of candidature 12th March. Date of poll 27th March. And those 5 districts are Purulia, Bankura, Jhargram, Paschim Midnapur Part 1, Purvo Midnapur Part 1. Am I clear? West Bengal, 8 phases. वहीं चुनाव के दिन घोषणा होने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 8 चरणों में चुनाव कराने से किसको लाभ होगा। उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो इस फैसले से किसको फायदा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि असम में 3 फेज में चुनाव कराया जा रहा है, फिर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों करवाया जा रहा है, किसकी मदद करने के लिए यह सब किया जा रहा है। बीजेपी ने जो भी मांग की थी उसे पूरा किया गया। आधे जिला में प्रत्येक दिन चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं? एक जिला में एक ही दिन में चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा है? क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आने से पहले असम और तमिलनाडु में अपना चुनाव प्रचार पूरा कर ले? 19টা সিট 3টে ফেজে ইলেকশন হয়েছে। আসামে 3টে ফেজে ইলেকশন হচ্ছে। তামিলনাড়ুতে সম্ভবত 240 এর মতো সিট, 34। তাতে সেখানে ওয়ান ডে ইলেকশন। কেরালায় সিপিএম গভর্নমেন্ট আছে ওয়ান ডে ইলেকশন। বাংলায় 294টা সিট, 8টা ফেজে ইলেকশন কেন? কাকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। We want election commission who have a highest regards. Now, like election commission, the important body,
If they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? Now, whatever I came to know from BJP party sources, whatever BJP have decided, as per BJP requisition, even I am really sorry to say that they cannot trust even West Bengal, the district also. I am really sorry. My question would be to Election Commission. I welcome your decision, but tell me why half of the district election every day? Why don't they do it? There must be some continuous the election, so that from post mobilization to election machinery everything you can do it together. কিন্তু আপনারা কি করেছেন? সেকেন্ড মার্চ, যেটা সেকেন্ড ইস্যু অফ নোটিফিকেশন 2 মার্চ, 27 মার্চ ইলেকশন করছেন কোথায়? পুরুলিয়া, বাঁকুড়াটাকে ভাগ করেছে, করে বাঁকুড়ার একটা পার্ট, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের আবার পার্ট 1, পূর্ব মেদিনীপুরের আবার পার্ট 1, এ আবার বিয়ে পার্ট 1 পার্ট 2 শেখাচ্ছে। একটা ডিস্ট্রিক্টকে ভাগ করে তাকে আবার পার্ট 1 পার্ট 2 করছে। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় যেহেতু আমাদের জোর বেশি, সেখানে 3 দিনে ইলেকশন করছে, মানে একটা জেলা 3 বারে। বুঝুন অবস্থা। 5 মার্চ যে ইলেকশন হচ্ছে, নোটিফিকেশন যেটা হচ্ছে 1 এপ্রিল, বাঁকুড়া পার্ট 2, পশ্চিম মেদিনীপুর পার্ট 2, পূর্ব মেদিনীপুর পার্ট 2, সাউথ 24 পরগনা পার্ট 1। এগুলো কি নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহর কথাই হয়েছে যে তারা ইলেকশনটা করতে যাতে কোন কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবে? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होने जा रहा है। मतदान 26 मार्च से शुरू होने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील कुमार अरोरा ने उसी दिन दिल्ली में कार्यक्रम की घोषणा की। परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। वहीं इस पर माकपा नेता अशोक भट्टाचार्य ने क्या कहा, सुनाएंगे आपको। তো এখন এই যে নির্বাচন হচ্ছে এপ্রিল মাসে, তাতে ভালোই, তত তাড়াতাড়ি নির্বাচন যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। আমরা তো চেয়েছিলাম পঞ্চায়েত এবং পৌরসভা নির্বাচনটা হোক, জিটিএ নির্বাচনটাও হোক, এবং মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া, যাতে মানুষের ভোট প্রদানটাকে অধিকারটা সুরক্ষিত থাকে, সেই দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। আমরা কোনো রাজ্যের পুলিশ, কেন্দ্রের পুলিশ বুঝি না। রাজ্যের পুলিশকে তৃণমূল কংগ্রেস মনে করে তাদের দলের পুলিশ, আর কেন্দ্রের পুলিশকে মনে করে বিজেপি মনে করে বিজেপির দলের পুলিশ। কিন্তু পুলিশকে হতে হবে নিরপেক্ষ। কেন্দ্রের পুলিশ, রাজ্যের পুলিশ আমরা বুঝি না। নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই এবং সুনিশ্চিত করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। কোনোভাবেই কোনো জায়গায় যেন কোনো ভীতি প্রদর্শন না হয়, প্রশাসন যেন নিরপেক্ষ থাকে। কালকে থেকে যেন পরিষ্কার কথাই হচ্ছে যে বহু জায়গায় বহু আধিকারিক আছে তৃণমূল কংগ্রেস দলের হয়ে কাজ করে, এদেরকে তুলে নিতে হবে। বহু পুলিশ অফিসার যেভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে বহু বিরোধী দলের নেতা কর্মীদেরকে হয়রানি করেছে, মিথ্যা মামলা দিয়েছে, এইসব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। তো এখন पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा हो गई है। यहां पर 8 फेज में चुनाव होगा। 27 मार्च के पहले चरण की वोटिंग होगी। 1 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान, 6 अप्रैल को तीसरे फेज का मतदान, 10 अप्रैल को चौथे फेज का मतदान, 17 अप्रैल को 5वें फेज का मतदान, 22 अप्रैल को 6ठे फेज का मतदान, 26 अप्रैल को 7वें फेज का मतदान और 29 अप्रैल को आखिरी 8वें फेज का मतदान होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। कोरोना को देखते हुए सभी राज्यों में मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं, जिसके अलावा मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। कोरोना को देखते हुए सभी चुनाव अधिकारियों को टीकाकरण किया जाएगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 216 में 77,413 चुनाव केंद्र थे। अब 1,01,916 चुनाव केंद्र होंगे। सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती 2 मई को की गई है। सभी केंद्रों से आपको एक बार फिर बता दें कि वहीं सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा हो गई है। यहां पर 8 फेज में चुनाव होगा। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। 1 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान, 6 अप्रैल को तीसरे फेज का मतदान, 10 अप्रैल को चौथे फेज का मतदान, 17 अप्रैल को 5वें फेज का मतदान, 22 अप्रैल को 6ठे फेज का मतदान, 26 अप्रैल को 7वें फेज का मतदान और 29 अप्रैल को आखिरी 8वें फेज का मतदान होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। कोरोना को देखते हुए सभी राज्यों में मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। कोरोना को देखते हुए सभी चुनाव अधिकारियों का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2016 में 77,413 चुनाव केंद्र थे। अब 1,01,916 चुनाव केंद्र होंगे। सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती 2 मई को होगी।